اور اب عالمی منظر کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے امریکہ کو متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایرانی کمانڈروں کو دھمکی دینا بند کرے۔ ایرانی کمانڈر جنرل حسین سلامی کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو اسے سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جنرل سلیمانی نے کہا کہ مخالفین کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ایران سے دشمنی کر کے ان کا کوئی بھی کمانڈر اس خطے میں محفوظ نہیں ہے۔ ایرانی پاسداران کا یہ بیان امریکی سفیر برائے ایران برائن ہوک کے اس بیان کے جواب میں آیا ہے جس میں انہوں نے قاسم سلیمانی کے جانشین کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی تھی۔ هم صهیونیست‌ها هم دیگران بدانند که اگر فرماندهان ما را تهدید کنند هیچ یک از فرماندهانشون نقطه امنی نخواهند یافت، یعنی جان هیچ فرماندهی در امان نخواهد بود۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں گزشتہ رات امریکی سفارتخانے پر ہونے والے راکٹ حملوں میں 6 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بغداد کے انتہائی حساس علاقے گرین زون میں امریکی سفارتخانے پر نامعلوم سمت سے کئی راکٹ داغے گئے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے انتہائی حساس علاقے گرین زون میں امریکی سفارتخانے پر کئی راکٹ داغے گئے جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق بغداد میں امریکی سفارتخانے کی جانب 5 راکٹ داغے گئے تھے جن میں سے 3 راکٹ سفارتخانے کے اندر گرے۔ 5 راکٹوں میں سے ایک راکٹ امریکی سفارتخانے کے کیفیٹیریا میں بھی گر کر پھٹا۔ راکٹ حملوں کے بعد امریکی طیاروں نے سفارتخانے کے کمپاؤنڈ میں لینڈنگ کی۔ عراقی حکام نے پہلے حملوں میں صرف ایک شخص کے زخمی ہونے کی تصدیق کی تھی، تاہم روسی خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ راکٹ حملوں میں متعدد افراد زخمی ہوئے جنہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے سفارتخانے سے منتقل کیا گیا۔ امریکی جوائنٹ آپریشنز کمانڈ کے مطابق امریکی سفارتخانے کے قریب 5 راکٹ فائر کیے گئے جن میں سے 3 راکٹ براہ راست سفارتخانے پر داغے گئے۔ ایک راکٹ رات کے کھانے کے وقت کیفیٹیریا میں گرا جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ راکٹ حملے کے بعد امریکہ نے عراق سے سفارتخانے کے تحفظ کے لیے اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران نواز گروپ عراقی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ عراق کے نگراں وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے راکٹ حملوں کی شدید مذمت کی۔ عادل عبد المہدی نے اس حملے کو جارحیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ عراق کو ایک جنگی ماحول میں دھکیل سکتا ہے۔ یاد رہے کہ چند دن قبل 21 جنوری کو بھی عراقی دارالحکومت بغداد کے گرین زون میں راکٹ برسائے گئے تھے جس میں امریکی سفارتخانے کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد اس علاقے میں آئے دن راکٹ حملے ہو رہے ہیں۔ 3 جنوری کو امریکی حملے میں پاسداران انقلاب کی القدس فورس کے سربراہ میجر جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے۔ ایران نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے 8 جنوری کو بغداد میں 2 امریکی فوجی اڈوں پر 1 درجن سے زائد بیلسٹک میزائل داغے تھے جن میں درجنوں امریکی فوجی زخمی ہوئے تھے۔ بغداد ایئرپورٹ کے باہر امریکی ڈرون حملے میں کتائب حزب اللہ کے کمانڈر مہدی المہندس بھی ہلاک ہوئے تھے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ فلسطین کے وزیر اعظم محمد شتایہ نے امریکہ کی جانب سے مشرق وسطی امن منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نام نہاد امن منصوبہ ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم نے کہا تو اس منصوبے سے خطے میں مسائل کا کوئی حل نکل سکتا ہے اور نہ ہی یہ منصوبہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو واشنگٹن میں ہیں اور ان سے ملاقات کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطی جامع امن منصوبے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ هذه الصفقة التي لا تستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي والتي تعطي إسرائيل كل ما تريده على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والمتمثلة في الدولة المستقلة ذات السيادة ومتواصلة الأطراف وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة، لا تشكل أساسا لحل الصراع وتقدمها جهة فقدت مصداقيتها في أن تكون وسيط نزيه لعملية سياسية جدية وحقيقية۔
افغانستان کی فضائی کمپنی ایریانا ایئر لائنز کا ایک مسافر جہاز وسطی صوبہ غزنی میں گر کر تباہ ہو گیا۔ غزنی کے گورنر ہاؤس کے ترجمان عارف نوری کے مطابق یہ بوئنگ جہاز سدوخیل کے علاقے میں مقامی وقت کے مطابق دن 1:10 پر کریش کر گیا۔ اطلاعات کے مطابق اس جہاز پر 38 مسافر اور عملے کے 6 ارکان سوار تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں کسی کے زندہ بچنے کے امکانات نہیں ہیں۔ عراق میں حکومت مخالف مظاہرے لگاتار جاری ہیں۔ دارالحکومت بغداد اور ملک کے دیگر شہروں میں تازہ احتجاج کے دوران مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں 20 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ عراق کا دارالحکومت بغداد کئی مہینوں سے حکومت مخالف مظاہروں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بغداد میں حکومت کے خلاف مظاہرے مسلسل جاری ہیں۔ تازہ مظاہروں میں بغداد کی سڑکوں پر مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جن میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ 26 جنوری کو بغداد میں پرامن مظاہرے شروع ہوئے، تاہم بہت جلد یہ پرتشدد رنگ اختیار کر گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے ہزاروں کی تعداد میں جمع مظاہرین پر آنسو گیس کے گولے داغے۔ بغداد کے تحریر اسکوائر پر یونیورسٹی کے سینکڑوں طلبہ جمع ہوئے اور حکومت کے خلاف جم کر نعرے بازی کی۔ بصرہ میں طلبہ نے مظاہرین کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے ذریعے کیے جا رہے بے جا طاقت کے استعمال کی مذمت کی۔ عراقی حکومت شدید عوامی احتجاج کی وجہ سے پوری طرح دباؤ میں ہے۔ دوسری جانب 24 جنوری کو بغداد میں ہزاروں افراد نے ملین مارچ میں شرکت کرتے ہوئے حکومت پر زور دیا تھا کہ وہ عراق میں موجود امریکی فوجیوں کو ملک سے بے دخل کرے۔ ملین مارچ کی کال عراق کے بااثر شیعہ رہنما مقتدی الصدر نے دی تھی۔ مظاہرین نے عراقی قومی پرچم اور پلاکارڈز تھامے رکھے تھے جن پر امریکی افواج کے عراق میں موجودگی کے خلاف نعرے درج تھے۔ 23 جنوری کو عراق کے صدر برہام صالح اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈاووس میں ملاقات ہوئی تھی جس میں عراق میں امریکی افواج کی تعداد کم کرنے پر بات چیت ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے باعث عراق کے شیعہ گروپ ناراض ہو گئے تھے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عراق کے صدر صالح کو عراقی خود مختاری کی تعظیم کرتے ہوئے صدر ٹرمپ سے نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اس ماہ کے اوائل میں عراقی ارکان پارلیمان نے غیر ملکی افواج کے ملک سے انخلاء کے حوالے سے ایک قرارداد منظور کی تھی۔ قرارداد میں کہا گیا تھا کہ امریکی فوجیوں کو اب عراق سے چلے جانا چاہیے چونکہ وہ داعش کے خلاف جنگ کے لیے یہاں آئے تھے اور اب داعش کے خلاف جنگ ختم ہو چکی ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ کی جانب سے 3 جنوری کو ایران کے اہم ملٹری کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد ملک میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ بیورو رپورٹ نیوز 18 اردو۔ اور ادھر لبنان میں احتجاج اور مظاہرے کے درمیان پارلیمنٹ کا 2 روزہ خصوصی اجلاس آج شروع ہوا۔ یہ اجلاس 2020 کے بجٹ کو منظوری دینے کے لیے بلایا گیا ہے۔ لبنان کے نئے وزیر اعظم حسن دیاب کا کہنا ہے کہ حکومت بجٹ کی منظوری کو ملتوی نہیں کرے گی۔ لن تعرقل موازنة أعدتها الحكومة السابقة وناقشتها لجنة المال والموازنة النيابية واللجان المشتركة واكتملت إجراءاتها. انطلاقا من ذلك فإن الحكومة تترك الأمر إلى المجلس النيابي الكريم مع احتفاظها بحق تقديم مشاريع قوانين لتعديلات في الموازنة بعد نيل الثقة. اور اس بیچ لبنان میں نئی حکومت کی تشکیل کے باوجود مظاہرین اور انتظامیہ میں ٹھنی ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ کے 2 روزہ خصوصی بجٹ اجلاس کے آغاز سے قبل آج حکومت مخالف زبردست مظاہرے ہوئے۔ احتجاج کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں اور مظاہرین میں زبردست جھڑپیں دیکھنے کو ملی۔ لبنان میں خصوصی بجٹ اجلاس کے موقع پر بیروت میں پارلیمنٹ کی عمارت کے قریب سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی۔ صورتحال کے مد نظر بیروت اور اس کے نواحی علاقوں میں بڑی تعداد میں سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ مظاہرین نے قانون سازوں کو پارلیمنٹ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے سڑکیں بند کر دی تھیں۔ اس دوران مظاہرین جیسے ہی پارلیمنٹ کی بیریکیڈنگ کی جانب بڑھے، سیکیورٹی اہلکاروں سے جھڑپ میں تیزی آ گئی۔ مظاہرین کو نئی حکومت قبول نہیں ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے مظاہرین پر
सिक्योरिटी एहलकारों ने ज्यादती की। العنف اللي استعملوه اليوم مفرط جدا. نحن مثل ما شايف كله بالعالم اللبناني ما حدا معه شيء. نزلوا خبطوا بالصبايا قبل الشباب ويلقطع على ايدها يبرم لها ايدها. هيدا التصرف مش مقبول ابدا. نزلنا لنتظاهر لحتى نقول للحكومه انه هيدي حكومه غير، لا تقول للحكومه انها الحكومه غير دستوريه، نازلين يشرعوا قوانين وبعدها الحكومه ما اخذت الثقه، ونحن بعدنا مكملين المسيره كلهم يعني كلهم وحنضلنا عليهم كلياتهم. लबनान में 1975 से 1990 तक चली खाना जंगी के खात्मे के बाद से मुल्क चला रहे हुक्मरान तबके के खिलाफ 3 माह से ज्यादा अरसे से मुजाहरे कर रहे हैं और गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान करदा वज़ीर आज़म हसन दियाब की नई 20 रुकनी हुकूमत को भी मुस्तरद कर दिया है। गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान बैरूत में फसादात भी हुए जिसमें 500 से जायद शहरी और पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। वाज़ेह है कि इसी एहतिजाज के नतीजे में पार्लियामेंट में साद हरीरी वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए थे। लबनान के अवाम मुल्क में महंगाई और बदनवानी के खिलाफ गुज़िश्ता कई महीनों से सरापा एहतजाज है। काबिल गौर है कि लबनान में शरह नमू काफ़ी कम हो गई है और बजट खसारा GDP के 11% तक पहुँच गया है और लबनानी मईशत सुस्त रवि की शिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ईरान के जनूबी मशरिकी शहर माह शहर में अवाम उस वक्त हैरान रह गए जब शहर के एक शाहरा पर इन्हें मुसाफिर तैयारा खड़ा मिला। मुसाफिर बरदार तैयारा जिस पर 135 अफराद सवार थे, एयरपोर्ट पर उतरने के दौरान रनवे से फिसलकर इस मसरूफ हाईवे पर जा पहुंचा। इत्तलात के मुताबिक तैयारे को यह हादसा खराब लैंडिंग की वजह से पेश आया और वो फिसलता हुआ सड़क पर जा पहुंचा। इस वाक़े में तैयारे पर सवार तमाम अफराद महफूज रहे। यह तैयारा कैस्पियन एयरलाइन का था और तेहरान से माह शहर पहुंचा था। बताया गया कि लैंडिंग के लिए इसके पहिए पूरी तरह खुल नहीं सके। जहाज पर मौजूद एक सहाफी ने बताया कि तैयारे के पिछले पहिए टूट गए जिसकी वजह से जहाज पहियों के बगैर फिसलता रहा। रियासती टेलीविजन ने सूबाई एविएशन हुक्काम के हवाले से बताया कि पायलट ने जहाज को उतारने में ताखीर की और इसी वजह से वो रनवे पर जहाज उतार नहीं सके। सिविल एविएशन के तर्जुमान रजा जाफरजादा ने बताया कि पीर को मकामी वक्त के मुताबिक 7:50 पर जहाज रनवे से फिसला। उन्होंने बताया कि वाकई की तहकीकात की जा रही है। सऊदी अरब के साबिक वज़ीर इंसाफ मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क गैर ममालिक में वाक़ मस्जिद के लिए फंड रोक देगा। अरबिया.com 21 ने स्विस अखबार के हवाले से इसके मुतालिक रिपोर्ट किया है। अरबिया 21.com की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सऊदी वज़ीर इंसाफ मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क गैर ममालिक में मसाजिद को फंड देना बंद कर देगा। स्विस अखबार ली मैतिन दिमांचे के मुताबिक सऊदी अरब मकामी हुकाम के ताउन से हर एक मस्जिद के लिए मकामी इंतजामी कौंसिल कायम करेगा ताकि इस सिलसिले में काम को आगे बढ़ाया जा सके। मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा ने मजीद कहा कि अब वक्त आ गया है कि जेनेवा मस्जिद को स्विस इंतजामी कौंसिल के हवाले किया जाए जो उस इलाके के मुसलमानों की नुमाइंदगी करेगी। उन्होंने कहा कि इसका एक मुंतखब आलिम होना चाहिए। सऊदी अरब में मुख्तलिफ उमूर के जिम्मेदार मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा का कहना है कि सऊदी अरब सिक्योरिटी वजूहात को मलहूज रखते हुए पूरी दुनिया की तमाम मसाजिद के साथ यकसां इक़दाम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तुर्की के मशरिकी हिस्सों में 24 जनवरी को आए जलजले में महलूकीन की तादाद 35 हो गई है। जलजले के नतीजे में 1000 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं। जुमे की रात तुर्की का मशरिकी हिस्सा 6.8 की शिद्दत के जलजले से लरज उठा था जिसके बायस दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर हो गई थीं। डिजास्टर मैनेजमेंट हुक्काम के मुताबिक जलजले का मरकज एलिग्स का इलाका था जिसकी जेर जमीन गहराई 6.7 किलोमीटर थी। हुक्काम का कहना है कि इमारतों के मलबे तले दबे 45 अफराद को बचा लिया गया है जबकि मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू का काम जारी है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरीन को दोबारा आबाद करने का अज़्म जाहिर किया। तुर्क सदर का कहना था कि वो मुतासरा अफराद को तनहा नहीं छोड़ेंगे। खबर चीन से है जहां कोरोना वायरस से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 80 से ज्यादा हो गई है जबकि मुतासरा होने वाले अफराद की तादाद 2700 से तजावुज कर चुकी है। बेशतर हलाकतें मुल्क के वस्ती शहर वुहान में हुई हैं।
कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए चीनी हुकूमत ने 9 बिलियन अमरीकी डॉलर्स के बराबर रकम जारी की है। चीन में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों और इस वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। अब तक इस वायरस ने दर्जनों अफराद की जान ले ली है। चीनी हुक्काम के मुताबिक मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद तकरीबन 3000 हो चुकी है। ज्यादातर हलाकतें मुल्क के वस्ती शहर वुहान में हुई हैं। वुहान में ही इस खतरनाक वायरस का पहला केस सामने आया था। हुक्काम की जानिब से चीनी नए साल की कौमी तातीलात में 3 रोज का इजाफा कर दिया गया ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके, जबकि चीन में बहुत से शहरों में सफर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। निजी गाड़ियों को भी सबसे ज्यादा मुतासरा सूबे हुबाई के मरकजी अजला में नक्लो हरकत नहीं करने दी जा रही, क्योंकि यही इलाका इस वायरस का मरकज है। वुहान हुबाई का दारुल हुकूमत है। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर वुहान के रिहायशियों को कहा गया है कि वो शहर से न निकले। वायरस के फैलाव से बचने के लिए बहुत से शहरों में ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। चीन के दूसरे सूबों में सफर करने वाले अफराद के जिस्मों के दर्जे हरारत को बाकायदगी से चेक किया जा रहा है ताकि किसी भी शख्स में वायरस की मौजूदगी का पता बरवक्त लगाया जा सके। हुक्काम के मुताबिक कोरोना वायरस अपनी अलामात जाहिर होने से पहले ही अपनी अफजाइश के दौरान फैल रहा है। इसी वजह से इसे रोकना मुश्किल हो रहा है। वज़ीर सेहत माजवाई ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वायरस के फैलाव की सलाहियत बज़ाहिर ताकतवर है। हुबाई के शहर वुहान में लॉकडाउन को यकीनी बनाया गया है। वज़ीर सेहत ने अपने बयान में कहा कि वायरस को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत अहम मरहला है। हुक्काम ने ऐलान किया कि इतवार से मुल्क में जंगली जानवरों की फरोख्त बंद है। ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि ये वायरस जानवरों से इंसानों में फैला, ताहम अभी तक सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हुई। हुक्काम के मुताबिक इंसानों में अफजाइश का दौरानिया 1 से 14 दिनों के दरमियान है, जिसमें किसी शख्स को अलामात जाहिर हुए बगैर भी बीमारी हो सकती है। अलामात के बगैर किसी मुतासरा शख्स को मालूम नहीं होता कि उसे कोई मर्ज लाक है, लेकिन वो इसके फैलाव का सबब बन सकता है। कोरोना वायरस से सांस का शदीद इन्फेक्शन हो जाता है। इसके लिए कोई खास इलाज या वैक्सीन मौजूद नहीं है। ज्यादातर अमवात उन उम्र रसीदा अफराद की हुई जिन्हें पहले से ही सांस के अमराज लाहक थे। ये वायरस गुज़िश्ता बरस दिसंबर में नमूदार हुआ था। कोरोना वायरस का ताल्लुक वायरसेस के उस खानदान से है जिनके नतीजे में मरीज बुखार में मुब्तला होता है। ये वायरस इससे कबल कभी नहीं देखा गया। ये वायरस दुनिया के दीगर मुमालिक में पहुंच चुका है। यहाँ 40 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इनमें थाईलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नाम शामिल हैं, लेकिन अब तक चीन से बाहर कोई अमवात नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने कहा है कि नए कोरोना वायरस के 3 मजीद मामले सामने आए हैं। सिडनी में खातून के पॉजिटिव पाए जाने के बाद 5 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के चीफ मेडिकल अफसर बेंडन मर्फी के मुताबिक सभी मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और इनकी हालत मुस्तहकम है। Australia, there are now 5 confirmed cases, 4 in New South Wales, in Sydney, currently at Westmead Hospital, and 1 in Melbourne in Monash Medical Centre. I'm advised that all 5 remain stable. There are a number of other Australians who have been tested and have been negative. I've been regularly updating the Prime Minister, the Minister for Health and Government on the developments. चीन में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 80 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। हिंदुस्तान में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। वजारत सेहत ने एडवाइजरी जारी की है। इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदा प्रीति ने। कोरोना वायरस से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है और 2700 से ज्यादा मामले अब तक आए हुए हैं। इस समय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में एडवाइजरी जारी की है और एडवाइजरी में कहा गया है कि कोरोना वायरस से भारत में अब तक 2 मामले अंकित किए गए हैं। पहला जो मामला है वो पटना में है। पटना में जो युवती है अभी कुछ दिन पहले ही वो चीन से आई थी। उस महिला में कोरोना वायरस के कुछ जो लक्षण हैं वो देखने को मिले हैं। हालांकि वो अभी आईसीयू में, पटना के आईसीयू में भर्ती है। दूसरा जो भारत में जो मामला सामने आया है वो जयपुर का है। जयपुर में जो छात्र है उसमें
कोरोना वायरस के जो लक्षण हैं वो देखने को मिले हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करके कहा है कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। WHO ने भी इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने से मना किया है। उन्होंने कहा है कि भारत में अभी 2 ही मामले सामने आए हैं, अभी ज़्यादा इसके कोई मामले सामने नहीं आए हैं। हालांकि इससे प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा जा रहा है कि अगर कोरोना वायरस के आपको कोई भी लक्षण नज़र आए तो उस मरीज़ को तुरंत ही सरकारी अस्पताल में दिखाएं और उसका इलाज करवाएं। कैमरा पर्सन दीपक बिस्ट के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई जारी है। पीर को सीनेट में सदर डोनाल्ड ट्रंप की दिफाई टीम दलाइल का आगाज करेगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे की कार्रवाई सेनेट में जारी है। अमेरिकी सदर ट्रंप की दिफाई टीम ने आज से अपने दलाइल का आगाज किया। रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियती ऐवान सेनेट में जारी ट्रंप के मुआखजे की कार्रवाई के दौरान डेमोक्रेटिक्स अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि गवाहों की तलबी के लिए रवा हफ्ते वोटिंग का इम्कान है। अमेरिकी सदर की लीगल टीम ट्रंप के दिफा के हक में मंगल को भी दलाइल का सिलसिला जारी रखेगी। इस दौरान सेनेट में लीगल टीम प्रेजेंटेशन देगी। इससे कबल सेनेट में मुआखजे की कार्रवाई के हक में दलाइल देने वाले डेमोक्रेटिक्स के प्रोसिक्यूटर एडम शेफ ने कहा था कि सदर ट्रंप ने रवा बरस नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाब में कामयाबी की गर्ज से अपने मुमकिन हरीफ जो बाइडेन के खिलाफ तहकीकात करने के लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर दबाव डाला था। एडम शेफ ने कहा था कि सदर ट्रंप का इक़दाम सदारती ऑफिस के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के मुतरादिफ है और इस अमल की वजह से वो सदारत के मनसब पर फाइज नहीं रह सकते। एडम शेफ ने दलाइल देते हुए कहा कि बैलेट बॉक्स फैसला नहीं करेगा सदर ने बदनवानी की या नहीं। सदर ट्रंप की दिफाई टीम के पास दलाइल देने के लिए 2 दिन का वक्त होगा, जिसके बाद तीसरे रोज यानी बुध को सेनेट सदर ट्रंप की टीम से सवालात पूछेंगे और सदर ट्रंप की टीम को मुआखजे की कार्रवाई पर एतराजात उठाने का हक होगा। 2 रोज के दौरान सदर ट्रंप की कानूनी टीम की तरफ से दिए गए दलाइल पर जुमेरात को सेनेट सवालात उठा सकते हैं और ये सवालात तहरीरी तौर पर मुआखजे की कार्रवाई की समाअत करने वाले जज चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स को पेश किए जाएंगे। इसी रोज ये बहस भी मुतवक्का है कि मुआखजे की कार्रवाई में मजीद गवाह और दस्तावेजात मंगवानी है या फिर नहीं। सदर के मुआखजे की जुमे को होने वाली कार्रवाई के दौरान सिर्फ ये बहस की जाएगी कि गवाहों को तलब किया जाए या नहीं और उस पर वोटिंग भी होगी। अगर सेनेट ने इस हक में वोट दिया कि मजीद गवाह और दस्तावेजात तलब की जाए तो मुआखजे की कार्रवाई तूल पकड़ सकती है। ताहम इम्कान है कि डेमोक्रेटिक्स को इस हवाले से वोटिंग में शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। याद रहे कि सेनेट में रिपब्लिकन को डेमोक्रेटिक्स पर अक्सरियत हासिल है। ऐवान में डेमोक्रेटिक्स के 45 और 2 आज़ाद रुकन हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के पास 100 के ऐवान में 53 वोट है। सेनेट में आइंदा हफ्ते पीर या मंगल को सदर ट्रंप का मुआखजा करने या उन्हें इल्जामात से बरी किए जाने से मुतल्लिक वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चीन हथियार तैयार करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है। ये बात स्टॉकहोम में कायम असलहे से मुतालिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में कही गई। 2015 से 2017 तक हथियारों के फरोग से मुतालिक आदादोशुमार के मुताबिक चीन की 4 बड़ी कंपनियों ने सिर्फ 2017 में 54.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स मालियत का असलहा फरोख्त किया। अभी भी हथियार फरोख्त करने वाला सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका है और रूस अब तीसरे नंबर पर आ गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और साबिक सदर बराक ओबामा समेत कई खिलाड़ियों और मारूफ शख्सियात ने कोबे ब्रायंट की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। बास्केटबॉल के शोहरा आफाक अमेरिकी साबिक खिलाड़ी कोबे गुज़िश्ता रोज लॉस एंजलिस के करीब एक हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हुए। लॉस एंजलिस लेकर्स के साबिक स्टार खिलाड़ी 41 साला ब्रायंट का शुमार अपने दौर के बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ियों में होता है। हादसे में इनकी 13 साला बेटी जियाना और पायलट समेत 7 अफराद हलाक हो गए। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।